This is BB Topaz ship, North Sea, 18th of September 2012. A man who almost died in the seabed with 5 minutes of gas left. Pitch dark, cold water, exposed to sea creatures. दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि समुंदर डरावना होता है। इस बंदे के बारे में सोचिए जो कि नॉर्थ सी में 300 फीट नीचे, जहां रोशनी का नामो निशान नहीं है। 5 मिनट का इमरजेंसी ऑक्सीजन, हड्डियों को गला देने वाले ठंडे पानी में, इंटेंस वाटर प्रेशर। अगर कोई जिंदा बच जाए तो मिरेकल से कम नहीं होता। दोस्तों नॉर्थ सी दुनिया का सबसे खतरनाक सी है। यहां हजारों शिप्स और कंटेनर्स बर्बाद हो चुके हैं। तेज तूफान आना आम बात, और विंड स्पीड 300 किलोमीटर पर घंटे पहुंच जाती है। दोस्तों आज की कहानी का हीरो क्रिस लेमंस है। समुद्र के 300 फीट नीचे, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां डाइविंग सूट पहने एक इंसान ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा है। ठंडा पानी उसे बुरी तरह जकड़ रहा है। यह है क्रिस लेमंस की दर्दनाक कहानी। और दोस्तों क्रिस ऐसे सिचुएशन में कैसे पहुंचा, इसको समझने के लिए हमें 30 मिनट पहले जाना होगा। क्रिस लेमंस, डेव यासा, डंकन एलॉक और 100 लोगों की क्रू बीबी टोपाज शिप में मेंटेनेंस का काम कर रहे थे। Saturation diving is a rare, a very dangerous, highly paid job. Your job is to fix the cables, oil pipes and infrastructural jobs in the seabed. Regular divers don't go so deep, but saturation divers has to go deep as 300 to 1000 square feet below to the seabed. This could be the height of the Empire State Building, New York, and rising from such depth to the surface can take 2 weeks. Saturation divers live in special chambers to train their body to face such pressures. They live there for months inhaling heliox. It's like living in a jail with absolutely small rooms, no privacy, no communication to the outer world. Chris, Duncan and Dave had to go 300 feet inside North Sea to fix the oil pipes. Bad weather, thunderstorm with strong winds blowing, temperature as low as 3 degrees Celsius recorded. Chris, Duncan and Dave wore their special swimming suits with special helmets, lights, umbilical cords attached to it. Umbilical cord supplies oxygen, power light, warm water to keep the body hot and communication to the ship from the divers. दोस्तों umbilical cords saturation divers की जिंदगी है। उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है। डाइविंग बेल से क्रिस और डेव धीरे धीरे मैनिफोल्ड मशीन पर 300 फीट नीचे पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद अपने अपने काम पर भी लग जाते हैं। ऊपर समुद्र में तूफान और तेज हो गया और बीबी टोपाज शिप पर एम्बर अलर्ट बजने लगा। धीरे धीरे शिप का डीपीएस सिस्टम भी फेल होने लगा। दोस्तों डीपीएस सिस्टम शिप का ऑटो पायलट सिस्टम होता है जो कि शिप को एक स्पॉट पर स्टेबल रखता है। चाहे समुद्र में कितनी ही तूफान आ जाए, शिप एक ही जगह पे रुका रहता है। Green light is safe, amber is alert, red light is danger or abort mission. Team suggested Chris and Dave to stop the mission and get back immediately. Chris and Dave understood the urgency. They decided to abort the work, started to climb the manifold as the bell was waiting at the top. Dave reached to the top of the manifold waiting for Chris to come. But notice Chris' umbilical cord is looped around the metal structure and is stretching badly. Dave and Chris tried unlooping the cord, but they failed. Now Dave is getting dragged by the ship away from Chris. Umbilical cable snaps out like a gunshot. Chris falls back in the dark seabed, away from the manifold structure, with no power, no communication, exposed to cold freezing water with 5 minutes of gas supply. दोस्तों केबल के टूटने का साफ मतलब था कि क्रिस की ऑक्सीजन सप्लाई रुक चुकी थी और 5 मिनट का इमरजेंसी सप्लाई शुरू हो चुका था। लेकिन क्या क्रिस के लिए ये 5 मिनट काफी होंगे? Chris' best chance of survival is 5 minutes of gas and climbing back to the top of the 30 feet manifold from the seabed. It was pitch dark. He was not able to see anything. He decided to move in one direction and he made it to the manifold structure. Finally, he manages to climb up the structure, but he lost 3 minutes of gas and energy. Chris' body was cooling down. It was harder to breathe.
He was slowly losing all hopes. क्या जिस समुद्री गहराई तक पहुंचने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, वहां बस 2 मिनट के ऑक्सीजन सप्लाई में कोई क्रिस को भी बचा पाएगा? वहां बीबी टोपाज शिप पर पैनिक की घंटी बज चुकी थी और डीपीएस रिस्टोर करने के लिए पूरी कोशिश में सभी लगे थे। रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल ROV, जो कि एक वीडियो कैमरा था, वो मैनिफोल्ड स्पॉट पर भेजा गया, जो कि क्रिस को खोजने में लग गया। और ठीक 15 मिनट बाद ROV ने क्रिस को मैनिफोल्ड के ऊपर पाया। क्रिस को मैनिफोल्ड के ऊपर स्ट्रगल करते हुए सभी ने देखा। उनके पास ज्यादा समय बचा नहीं था और हर एक सांस उसके ऑक्सीजन को खत्म करते जा रही थी। क्रिस के मन में एक सवाल चल रही थी, क्या कोई उसे ढूंढ भी पाएगा या वहीं पर उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी? They managed to restore the DPS system in the ship by switching off the entire system manually. The team finally reaches the spot, but they were sure Chris is dead by now and they should go down to recover his body. Hundreds of people were glued to the camera. They could see Chris' body moving and twitching. All of this is so painful to watch. It was like a horror situation, watching his friend dying every moment in front of them. वीडियो फुटेज पर क्रिस को देखकर क्रू मेंबर्स एक पल के लिए खुशियां तो मनाने लगे थे, लेकिन क्रिस को हर एक पल मरते हुए देखना उनके लिए हार्ट ब्रेकिंग था। डेव और डनकन डाइविंग बेल पर खुद को कोस रहे थे कि वो क्रिस को बचा नहीं पाए। डाइविंग बेल से मैनिफोल्ड पर डेव आते हैं और क्रिस की डेड बॉडी को उठाकर बेल पर वापस लेकर जाते। क्रिस's body was completely blue, cold and motionless. डेव को पता नहीं क्या ख्याल आया और उसने क्रिस की हेलमेट उतारकर उसे CPR फर्स्ट एड देना शुरू कर दिया। सारे क्रू मेंबर्स डेव को रोकने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि डेव अपने क्लोज फ्रेंड की मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, पर अचानक कुछ अजीब होता है। यह चमत्कार से कम नहीं है। दिस इज अ मिरेकल, अनबिलीवेबल, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। क्रिस समुद्र में 40 मिनट तक बिना ऑक्सीजन पर थे। उनका बचना इम्पॉसिबल था। लेकिन डेव के CPR देने के बाद क्रिस की बॉडी झटके से हिलती है। क्रिस झटके से उठते हैं, उनका लंग्स ऑक्सीजन से भर जाता है और उनकी आंखें खुलती है। कोई भी क्रू मेंबर इस नज़ारे को देखकर विश्वास नहीं कर पा रहा था, क्योंकि साइंटिफिकली क्रिस मर चुके थे और ये इम्पॉसिबल सिचुएशन था। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? What is the science reasoning behind this? क्रिस के मौत के मुंह से वापस लौटने के 2 रीजंस हो सकते हैं। फैक्टर 1, नॉर्थ सी का फ्रीजिंग वाटर। क्रिस समुद्र के 300 फीट नीचे हाइपरथर्मिया के शिकार हो चुके थे। हाइपरथर्मिया स्टेट में क्रिस की मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो चुकी थी और ऑक्सीजन कंजम्पशन ना के बराबर था। दोस्तों, लो मेटाबॉलिज्म रेट में क्रिस की ब्रेन टिश्यूज और बॉडी ऑर्गन्स डैमेज होने से बच गए थे। सेकेंड फैक्टर, स्पेशल गैस मिक्सचर और एडेप्टेशन टू डीप सी इन्वायरमेंट। दोस्तों, क्रिस एक सैचुरेशन डाइवर है और उन्हें हफ्तों तक स्पेशल चेंबर में अपनी बॉडी को उस लेवल के लिए ट्रेन करना पड़ता है। सैचुरेशन डाइवर एक नॉर्मल डाइवर से ज्यादा देर पानी में रह सकते हैं। क्रिस की बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड्स एक नॉर्मल इंसान से कम हो चुकी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है क्रिस 5 मिनट के इमरजेंसी ऑक्सीजन से 40 मिनट तक जिंदा कैसे रहा? वेल, नोबडी नोज द आंसर फॉर श्योर। इट्स अ मिस्ट्री बियॉन्ड साइंस। दोस्तों, क्रिस लेमन्स की कहानी सुनकर मेरे दिमाग में तो यही ख्याल आता है, जैको रखे साइयां मार सके ना कोई। गॉड इज अ सेवियर, गॉड इज अ प्रोटेक्टर एंड ही हैज प्लान्स फॉर एवरीवन। क्रिस लेमन्स की कहानी दूसरे डाइवर्स के लिए एक लेसन्स के साथ साथ एक नाइटमेयर भी थी। ऑलराइट गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। Thanks for watching this video till the end. Take care. Bye bye.